Good morning, dear students. Let's continue with the topic enzymes from chapter biomolecules, chapter number 9. So, yesterday we talked about the different groups of enzymes. We also talked about the different properties of enzymes. Today, we are going to talk about the enzymatic activity and the effects of the different factors on the enzymatic activity. So, let's discuss it here. In the previous video, I told you that every enzyme has a specific optimum temperature at which its activity is at optimum. That is, it is best acting at its particular temperature. So here you can see that the activity of enzyme increases till it reaches its optimum, and after that also it starts decreasing. Similarly, for a optimum pH also, the enzymatic activity will keep on increasing, and after a certain pH, it will be 0. Now, next we talk about the effect of substrate concentration. For this, there are few things that you have to keep in mind. One thing that you need to keep in mind is that the substrate activity, as I told you, it has to be, the substrate activity is proportional. It is, if it is in large excess, because बहुत ज़्यादा अगर excess में है तो वो concentration of enzymes के directly proportional रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे activity, जैसे जैसे amount बढ़ता जाएगा substrate का, enzymatic activity बढ़ती जाएगी. लेकिन जैसे ही जैसे ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, जैसे मैंने आपको पूरा एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था, तो उसके बाद एक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाएगा. तो इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है, जिसे हम कहते हैं मिकालिस मेंटन इक्वेशन. मिकालिस मेंटन इक्वेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन देयर इज इन द फिगर इट इज मेंशन्ड Km, which is the Michaelis-Menten constant. तो क्योंकि वहां पर वो मेंशन्ड है, so you must know what is Michaelis-Menten equation. Only then you will be able to understand what is the Michaelis-Menten constant. So look here, Michaelis-Menten equation कहती है कि v, that is velocity, velocity v max होगी. v max मतलब जितना maximum velocity पहुंचेगी वो कब होगी? when s upon km plus s, जहां पर v का मतलब क्या हो गया आपका? velocity, s का मतलब है substrate, और V max is the maximum value जितना की एक velocity उस reaction की हो सकती है, and Km is the Michaelis-Menten constant. The effect of substrate concentration on the rate of hypothetical enzymatic reaction according to Michaelis-Menten model is shown here now in the figure. Now this is the figure which is given in the NCERT textbook. So here you can see that on one side of the graph they have plotted the substrate concentration, on the other side they have plotted the velocity of the reaction. So the velocity keeps on increasing up to a certain concentration of substrate, और जब वो substrate concentration उसके बाद बढ़ती रहेगी, then the enzymes will be saturated. तो एक saturation point आ जाएगा, और saturation point के बाद there will be no more increase in the enzymatic activity. So that's the Vmax. अब इसके बाद और बढ़ नहीं सकती है. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि Vmax by 2, that is half, जो इंक्रीज होगा वो कहां पर होगा? सो दैट इज, यहां पर अगर हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम ले लेंगे उसको, द वैल्यू विल बी Km, व्हिच इज द Michaelis-Menten कांस्टेंट एज वी टॉक्ड अबाउट. नेक्स्ट, नाउ जैसे हम बात कर रहे थे कि हर एंजाइम का, जो हम कह रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है, एंजाइम के बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं. एंजाइम सबसे पहले बाइंड करेगा टू द सबस्ट्रेट और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर जाएगा तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी रिएक्शन के टेक प्लेस करने के लिए जो चाहिए, दैट एनर्जी इज लोअर्ड बिकॉज ऑफ द एंजाइम. बिकॉज उससे क्या हो रहा है कि वो जो सबस्ट्रेट है उसको वहां पर रिएक्शन करने के लिए ईज हो रहा है, क्योंकि वो बाइंड कर चुका है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर. तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं. द एनर्जी which is required for any particular reaction to take place. Suppose they have given it कि यहाँ पर इतनी activation energy चाहिए without the enzyme. लेकिन with enzyme अगर हम देखें तो ये amount of energy बहुत कम हो जाता है. जब substrate bind कर जाएगा तो amount of energy बहुत कम हो जाएगा. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये because of the lowering of the energy which is required for the reaction to take place, the enzymatic reaction take place fast, because ये energy is normal and it can be obtained from the body. लेकिन
एक्टिवेशन एनर्जी के लोअर होने की वजह से द एनर्जी इज लोअर्ड एंड बिकॉज ऑफ विच द रिएक्शन का प्रोग्रेस है वो बढ़ जाएगा और बहुत ही इजीली रिएक्शन हो पाएगी बॉडी में. Now they were shown the energy released as the products are formed because आपको पता है कि जब भी कोई ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है बॉडी में, हम यहाँ पर ब्रेकडाउन रिएक्शन की जैसे बात कर रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी का रिलीज होता है और जो आपका फाइनल एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स आएगा वो आपका लोअर होगा एज कंपेयर टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज हायर एज कंपेयर टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम में एक सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है, तो सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं कि एक एक्टिव साइट है एंजाइम के पास जहां आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और यहाँ पर सबस्ट्रेट जब वो बाइंड करेगा तो उसके बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स. एंड एज यू नो, हर एक एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, तो इसलिए वो यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा फिर एंजाइम के साथ, तो जिसकी वजह से वो फ्री हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम. अब यहाँ बात करते हैं कि अगर सबस्ट्रेट यहाँ एक्टिव साइट पर बाइंड कर गया एंड इट इज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. अब हम बात करते हैं इनिबिशन की. तो इनिबिटर क्या है, यहाँ पर एक्टिव साइट के ऊपर अगर कोई इनिबिटर बाइंड कर जाता है विच हैज अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है टू द सबस्ट्रेट, तो उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है एक्चुअल सबस्ट्रेट वो बाइंड नहीं कर पाएगा एंड दिस कॉज द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन.